નમસ્કાર, લોકમંચ કાર્યક્રમમાં હું મયુરી આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું। ખેડૂતોની આત્મહત્યાનો મુદ્દો એક એવો મુદ્દો કે જેનો દેશની આઝાદીના આટલા વર્ષો બાદ પણ કોઈ નક્કર નિરાકરણ આવી શક્યું નથી અને કમનસીબે એટલા માટે આ કહેવું પડે છે કેમ કે આઝાદીના આટલા વર્ષો બાદ પણ હજુ પણ આ સમસ્યા ઠેરની ઠેર જોવા મળી રહી છે। આપણા દેશના ઘણા ભાગોમાં ઘણા રાજ્યોમાં ખેડૂતોના અલગ અલગ પ્રશ્નો છે, અલગ અલગ મુશ્કેલીઓ છે, પરંતુ સર્વસામાન્ય એક બાબત જો જોવા મળતી હોય એ છે ખેડૂતોનું જીવન ધોરણ જે હજુ સુધી સુધર્યું નથી અને તેના પરિણામે આત્મહત્યા કરવા માટે તેઓ પ્રેરાઈ રહ્યા છે। શા માટે આખરે આત્મહત્યા કરવા માટે તેઓ પ્રેરાઈ રહ્યા છે અને આખરે શું કારણો છે આની પાછળ તે જાણવાનો આજના કાર્યક્રમમાં પ્રયાસ કરીશું। ખાસ કરીને એ અન્નદાતા કે જે ધાન ઉગાડે છે, જેના અથાગ પ્રયત્નોના કારણે, પરિશ્રમના કારણે, જે લોહી પાણી પરસેવો એક કરીને આપણા માટે અનાજ ઉગાડે છે, જેના પ્રયત્નોના કારણે આપણા થાળીમાં ભોજન આવે છે, જેના અન્નના કારણે આપણું શરીર ધબકતું રહે છે, એ જ અન્નનો દાતા પોતાના શ્વાસો ટૂંકાવવા માટે, પોતાનું જીવન ટૂંકાવવા માટે પ્રેરાઈ રહ્યો છે। અને વર્ષે ને વર્ષે જો આપણે જોઈએ, આંકડાકીય માહિતી પણ જોઈએ, સતત આંકડા વધી રહ્યા છે। આખરે આ સમસ્યા જે છે તેની પાછળ જવાબદાર કોણ? આખરે જે આ મૂળમાં સમસ્યા જે છે તેનું નિરાકરણ શું શક્ય છે? શું એવું શક્ય છે કે કોઈ પણ જે ખેડૂત છે તે તમામ પ્રકારની તેને સ્પર્શતી જે બાબતો છે ખેતીને લગતી, પછી તે પાણીની સમસ્યા હોય, કયા પ્રકારનો પાક ઉગાડવો, કે પછી કયા પ્રકારનું બિયારણ વાપરવું, કે પછી કયા પ્રકારની એવી પ્રવૃત્તિ કરવી કે જેનાથી તેને સારી ઉપજ મળી રહે અને ખેડૂત સાચા અર્થમાં સુખી, સંપન્ન, સદ્ધર બને, તેવી કયા પ્રકારના આપણે પ્રવૃત્તિઓ અપનાવી શકીએ, સરકારે પણ શું કરવું જોઈએ, આ તમામ બાબતોને આજના કાર્યક્રમમાં ચર્ચામાં આવરી લઈશું। અને હવે વધુ સમય ન લેતા આજના કાર્યક્રમમાં જે આપણા ખાસ મહેમાન બન્યા છે તેમનો આપને પરિચય કરાવી દઉં। મારી સાથે ચર્ચામાં જોડાયા છે વિનાયક હેગાણા। વિનાયકભાઈ, પહેલા તો આપનું સ્વાગત કરું છું કાર્યક્રમમાં। નમસ્કાર। વિનાયકભાઈનો પરિચય જો હું આપું તો એ પ્રકારે આપી શકું કે ખાસ તો છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી ખૂબ જ તેમનો ઊંડો અનુભવ રહ્યો છે, ખૂબ જ કામ કર્યું છે ખેડૂતો માટે, ખેડૂતોના પ્રશ્નોના ઉકેલ માટે, ખેડૂતોને જે સમસ્યાઓ નડે છે, જે મુશ્કેલીઓમાંથી તેઓ પસાર થાય છે, ખેડૂતોનું જીવન ધોરણ કેવા પ્રકારનું હોય છે, તેમની સંસ્કૃતિ કેવા પ્રકારની છે, તેમની જે ખેતીની પ્રવૃત્તિઓ છે તેમાં તેમને શું સમસ્યાઓ થાય છે એ બાબતે ઊંડું સંશોધન કર્યું છે, ચિંતન મનન કર્યું છે અને તેના માટે તેમણે ખેડૂતોની આત્મહત્યાને રોકવા માટે જે પ્રયાસો હાથ ધરવા જોઈએ તેને લગતા કામો કર્યા છે। તેમણે ખાસ એક પુસ્તક લખ્યું છે અને મહારાષ્ટ્રથી છે વિનાયકભાઈ, એટલે તેમણે મરાઠીમાં પુસ્તક લખ્યું છે જેનું નામ છે શેતકરી આત્મહત્યા, શોધ આણી બોધ, અને જેનો અનુવાદ આપણે ગુજરાતીમાં કરીએ તો એ પ્રકારે થાય કે ખેડૂતોની આત્મહત્યા તો એક સળગતો મુદ્દો છે અને ખેડૂતોની આત્મહત્યા, સંશોધન અને સમજણ, આ સમસ્યાના આખરે મૂળિયા ક્યાં રોપાય છે, ખૂબ જ ઊંડું જ્ઞાન માગી લેતી આ બાબત છે, સમજ માગી લેતી આ બાબત છે અને આ સમજ તેમણે કેળવી છે પોતાના અથાગ પરિશ્રમથી, મહેનતથી। અને હાલ તેઓ યુકેની સરકારમાં એડવાઇઝરી તરીકે છે, યુકેની સરકારમાં કમિટીમાં, કેમ કે આ જે ખેડૂતોની આત્મહત્યાનો પ્રશ્ન છે, દર્શક મિત્રો તમને જાણીને નવાઈ લાગશે કે આ જે પ્રશ્ન છે બિલકુલ એવું નથી કે આ પ્રશ્ન ફક્ત ભારતનો છે, ફક્ત આપણા દેશનો છે, આપણા પાડોશી દેશોનો છે, કે આ જે પ્રશ્ન છે ખેડૂતોની આત્મહત્યાનો એ ગ્લોબલ લેવલે પણ ઇમ્પેક્ટ પાડી શકે, એટલે કે વૈશ્વિક સ્તરે પણ આની એક અસર છે તે બિલકુલ આપણને જોવા મળે છે। અત્યારે વિનાયકભાઈ જે કામ કરી રહ્યા છે તે યુકેની સરકાર માટે કામ કરી રહ્યા છે અને યુકેના જે ખેડૂતો છે તે પણ આવા જ પ્રકારની સમસ્યાઓથી પીડાઈ રહ્યા છે અને તેમને પણ ઘણા એવા પરિબળો છે જે આત્મહત્યા તરફ દોરી જાય છે। તો આના વિશે પણ ચર્ચા કરીશું। વિનાયકભાઈ, પહેલો સવાલ એ કરવા માંગુ છું કે આખરે એક ખેડૂત આત્મહત્યા એટલે જીવનનો અંત લાવવા સુધી કયા એવા પરિબળો છે, ऐसे क्या परिबल हो सकते हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं, क्या दिमाग में उनको आता होगा कि ये जो प्रॉब्लम्स है, ये जो समस्या है, चाहे वो कर्जा लेना हो या फिर जो धान उगाया है, जिसकी खेती की है, अगर वो जो पाक है निष्फल गया है तो उसके लिए फिर कर्जे में डूबा हुआ परिवार जो है, बच्चों को खाना कौन खिलाएगा, इस तरीके की जब वो सोचते हैं तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उनको लगता है कि बस आत्महत्या ही एक उपाय है, मैं मेरी ज़िंदगी ख़त्म कर दूं, क्या ऐसी चीज़ उनको ये सोच दिमाग में ला सकती होगी आपकी दृष्टि से? जी,
तो इसके पीछे लगभग 2.5 साल का पूरा उनका एक जर्नी रहता है, प्रवास रहता है, जिससे उस हद तक वो सोचते हैं, विचार करते हैं। तो इस सारी चीज़ें में उनके खेत के प्रॉब्लम होते हैं, उनके जो उनके एजुकेशन के बच्चों के प्रॉब्लम होते हैं, हेल्थ के इश्यूज होते हैं, बहुत सारे 17 उसके पीछे रीजंस है। तो उससे वो हम इसको कहते हैं शिवार के तरफ से इट इज़ एग्रो साइको सोशल, ये खेती का ही प्रॉब्लम है और सामाजिक स्तर का प्रॉब्लम है और उनके मानसिक तौर पे ये इम्पैक्ट करता है और उससे वो डिस्ट्रेस होते हैं, जैसे कि उनका मन उसमें खेती में नहीं लगता, उस प्रॉब्लम पे इतने जकड़ जाते कि उनको एक उससे आगे बढ़ने का रास्ता नहीं दिख जाता। तो इस तरीके से वो इसमें ढकल जाते हैं। बट कोई भी जो फार्मर है, जो भी किसान है, वो विलिंगली उसको अच्छा नहीं लगता कि हम सुसाइड करके इस चीज़ से आगे जाए। बट ऐसी कभी सिचुएशन आती है जैसे बाढ़ आना या ड्राउट आना या कोई भी कोविड जैसा संकट आना, तो इसका पहला इम्पैक्ट हमारे ग्रामीण जीवन पे और किसान के लाइफ में आता है और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। इससे वो डिस्ट्रेस में जाते हैं और गांव में ये मेंटल हेल्थ को या उनके किसानी तौर के चैलेंजेस को, प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए हमारे यहाँ भारत में थोड़ी इकोसिस्टम कम है। जैसे आपने शुरुआती में बताया, ये सारे जगत की कहानी है, ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं है। वैसे ही बट अदर देन दूसरे जगत के हिसाब से भारत में ये ज़्यादा चीज़ें आगे बढ़ती है, तो हम उस पर काम करने के हिसाब से ये पूरी सोच होनी चाहिए। बिल्कुल विनायक जी, और हमें ये बताएं कि आप क्या एक्टिविटीज़ करते हैं जिसकी वजह से जो फार्मर्स है, जो भी हमारे जो खेती करते हैं, उनके जीवन को बदलाव लाने के लिए जीवन के अंदर ऐसी क्या चीज़ें करने की जो सरकारी तौर पे अगर हम देखें तो सरकार को भी क्या करने की ज़रूरत है और हम कैसे उनको आत्मनिर्भर ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हैं ताकि आत्महत्या जैसी चीज़ें उनको सोचने की ज़रूरत ना पड़े कभी ज़िंदगी में। तो किसान की आत्महत्या रोकने के लिए हमने शिवार फाउंडेशन नाम की एक संस्था शुरू की है। उससे हमने लगभग लास्ट 9 साल के प्रयास से हमने किसान की आत्महत्या रोकने का एक पिरामिड मॉडल डेवलप किया है और इसका रिकग्नाइजेशन जागतिक तौर पे, जगत के तौर पे लिया गया है। और उसमें हम कहते हैं कि प्रिवेंशन, रिहैबिटेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, मतलब किसान आत्महत्या ना करे इसके लिए क्या होना चाहिए। तो हमने एक शिवार हेल्पलाइन नाम की एक हेल्पलाइन शुरू की जिसको भी कुछ दिक्कतें हो तो वो फार्मर्स उस नंबर पे फ़ोन करता है और उस दिक्कतों को हम गवर्नमेंट के तौर पे, सामाजिक संस्थान के तौर पे और वैयक्तिक लोगों के तौर पे उनको मदद देना, उनको हाथ बंटवाना, उनको सपोर्ट करना, उनको गाइड करना, उनके सारे जो भी उनके प्रॉब्लम्स है उनको गाइड करना, वो हमारा एक तरीका है जिसमें हम उनका काउंसलिंग होता है, नीड असेसमेंट होती है, उनकी ज़रूरतों की पहचान होती है और उनका मदद होता है। तो इसमें हम मानसिक तौर पे और सामाजिक तौर पे उनका कितना तान तनाव है और उसका सुलझाना कैसा हो सकता है, तो हमें उस पे कम, ज़्यादा और बहुत ज़्यादा इस 3 तरीके से उनको हम देखते हैं और मदद करते। और अब तक जब लगभग 198 तक हमने इन फार्मर्स को सपोर्ट किया है, प्रिवेंट किया है सुसाइडल टेंडेंसी से। और दूसरा है कि जो एक्सीडेंटली किसी घर में ये आत्महत्या हो चुकी है, उन फैमिलीज़ को जो विधवा है या महिला है, उस महिला को हम लाइवलीहुड के तरफ से कैसे एक शाश्वत तरीके से काम दे सकते। तो उस इलाके में जैसे गुजरात में
गिर गाय है हम आपके यहाँ, वैसे उस्मानाबादी गोट शैली जो होती है वो वहाँ ज़्यादा पैदाश होती है। तो उसको लेके हमने उस पर बहुत ज़्यादा संशोधन किया और उसके जो मिल्क रहता है, दूध रहता है, उस दूध से हमने कुछ साबुन बनवाना या बहुत सारी चीज़ें बनवाई और उनको एक काम दिया। और तीसरा मुद्दा है कि सस्टेनेबिलिटी, मतलब ऐसे जो किसान हैं जो चैलेंजेस में आके सुसाइड कर सकते हैं, ऐसे हम गांव से पूरे निकालते हैं हमारे संशोधन से, और उनको उस फार्मर्स को कैसे खेती करना है और आपका जितना भी कर्जा है, आपके जो भी चैलेंजेस है, वो खेती के पैसे से ही आपको कैसे कर सकते हैं, उसका पूरा उनको हम गाइडेंस देते हैं, उनको सलाह देते हैं। और उस सलाह से आज तक लगभग 200 से ज़्यादा किसान ने उसमें से उनका खुद का कर्जा खुद फेड़ा है और शाश्वती से उसको निकाला है। इस तरीके से आपने जैसे कहा कि गवर्नमेंट के तौर पे क्या कर सकते, तो हम हमारे प्रयास यही चल रहा है कि ये हेल्पलाइन पूरे इंडिया में और हर जिला के स्तर पे ये चालू हो और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स तक एक गवर्नमेंट के तौर पे ये पहुंच जाए और गवर्नमेंट जो भी काम करती है फार्मर्स के लिए उनके तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। बिल्कुल विनायक जी, और सबसे पहले तो जिस तरीके से इतने सालों से संशोधन किया है इस विषय में आपने, जब किसानों के साथ आप काम करते हैं, जब आप जाते हैं जगहों पर कि जहाँ पे किसान ये सोच रहा है कि ये जो समस्या है मेरी, उसका एक ही अंत हो सकता है कि मैं मेरी ज़िंदगी को ही ख़त्म कर दूँ, तो ये जब किसान से आप बात करते हैं रोकने के लिए, क्या आप ऐसा आपको कहना पड़ता है कि जिससे प्रिवेंशन होता है वहाँ पे? और ख़ास तो सामाजिक भी तौर पे अगर देखने जाए तो सामाजिक क्या ऐसी समस्या है जो इसको असर करती है कि जिसकी वजह से इस तरीके का बिल्कुल नकारात्मक निर्णय लेते हैं वो लोग? जी, जैसे कि मैं एक किसान के घर से ही आगे आया हूँ और किसानी ही मैंने सीखी है, एजुकेशन लिया है, तो उससे मेरे साथ सारे वैसे ही युवा वर्ग जुड़े हैं कि जो किसानी फैमिली से आए हैं और कुछ किसानी में पढ़ रहे हैं या किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो उनको मैंने वही एक टूल दिया है। जैसे मैंने बाकी मेंटल हेल्थ या बाकी सोशल वर्क के बारे में कुछ पढ़ाई नहीं की एज सच, बट मैंने उनको वो एक टूल दिया है कि आपके खुद के माता पिता उस कंडीशन में हो, वैसे सिचुएशन में हो, तो आप क्या करेंगे, वो हर किसान के साथ हमें करना है, क्योंकि हर किसान हमारा माता पिता जैसा एक भाग है। तो उस तरीके से हम उनको फार्मर्स को वही कहते हैं कि उनके एज के हिसाब से आगे जो किसान बात करता है तो उसके एज से आवाज़ से हम पता करते कि क्या एज होगी, और उस एज से हम उनको कहते कि हम आपके बेटे जैसे हैं, हम आपके भाई जैसे हैं, और उनको एक सपोर्ट सिस्टम दे कि हम आपके साथ हैं, कुछ डरने की ज़रूरत नहीं, हम मिलके ये इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे, कुछ इशू नहीं। और हम पूरे उनके साथ रहते, एक 2 साल हम उनके साथ काम करते, साथ में रहते हैं, उनको कुछ भी मदद लगे, कुछ भी सपोर्ट लगे तो हम उनके साथ रहते, तो वो एक इकोसिस्टम है। और जैसे आपने सामाजिक स्तर पे प्रॉब्लम कहा, तो सामाजिक ऐसे कि बहुत सारे जैसे किसान की फसल नहीं अच्छी हुई या उसकी आमदनी उसके साल में नहीं हुई, तो उसको कर्जा लेना पड़ता है और वो कर्जा नहीं चुका सकता जब दूसरे साल भी यही सिचुएशन होती कि उसका खेत से पैसा नहीं आ रहा है, तब उसके बच्चों का जो शिक्षा है, उसके घर में कोई आपातकालीन कुछ घटनाएं घड़ी तो उसके लिए जो पैसा लगेगा, ऐसी प्रॉब्लम्स बढ़ के उसके फैमिली को डिस्टर्ब में लाते हैं, डिस्ट्रेस में लाते हैं, अड़चनों में डालते हैं। तो उस सारे सामाजिक स्तर के, जैसे बेटी का शादी होना, वो एक बड़ा संकट है इस फार्मर्स के चीज़ में। तो उस बेटी के खर्चे के लिए, शादी के लिए जो पैसा लगता है, उसमें ज़्यादा फार्मर्स आगे सुसाइड तक सोचते हैं, क्योंकि उनके पास हेल्पलेस रहते हैं। और समाज के बारे में सोचना वो एक हमारा सामाजिक भान है कि किसान
समाज क्या कहेगा इसके बारे में बहुत सोचते और बिल्कुल विनायक जी। और मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ ये भी बताना चाहूँगी कि जैसे बेटी की शादी का जो आपने बताया कि एक सामाजिक तौर पे भी बहुत ये समस्या है जिसके सामने जूझना पड़ता है, और दूसरा ये कि बेटी की शादी है और दहेज भी देना है। जी जी। दहेज का जो कल्चर है वो भी कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा है इस ओवरऑल इश्यू को। जी जी जी। लगता है आपको ये? जी जी, दहेज का बहुत बड़ा ये है इशू है, और दहेज के वजह से ही ऐसी घटनाएं भी ज़्यादा सामने आती है। बट हमने इस पे भी एक काम किया, और बहुत लगभग 10,000 फार्मर्स के साथ हमने काम किया, और उन फार्मर्स को ये बताया, उन बच्चों को बताया कि दहेज का क्या इम्पोर्टेंस है, ना देना क्या इम्पोर्टेंस है, और जो लड़का है उसको पहले ही आप कंडीशन रख के इसको कैसे कर सकते हैं, और कर्जा निकाल के शादी करना ये हमने नहीं करने दिया, उनको गाइड किया। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत के जो भी किसान है, गांव में रहने वाले लोग हैं, उनको ठीक से बताया गया तो सारे समझदार है, बट बताने वाला कोई नहीं। तो ये हमारा एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट काम है कि हम उनको टाइम दे के ये सारी चीज़ें बताते, और मुझे लगता है कि दिन भर दिन ये चेंज बदल हो जाएगा और इसमें से केसेस कम हो जाएंगे। बिल्कुल। अभी थोड़ा विनायक जी आपकी थोड़ी निजी ज़िंदगी के बारे में भी बात करना चाहिए, ये मुझे लग रहा है, क्योंकि ख़ास तौर पे किसान और किसानों की मानसिक स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं इसके बारे में हमारे देश में बहुत कम बातें होती है। और ख़ास तौर पे जब हम बात कर रहे हैं अभी, विनायक जी को क्यों ऐसा लगा कि इस दिशा में काम करना चाहिए, इस दिशा में मुझे कुछ रिसर्च करना चाहिए या मुझे कोई एक्टिविटी करना चाहिए, वो क्या पल था कि जब आपने ये सोचा कि मुझे इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए? जी, मैं जैसे शालेय जीवन में था तो मेरे गांव में भी एक किसान ने आत्महत्या की थी, तब इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बट जैसे मैंने पढ़ने लगा तब मुझे एक डॉक्टर सुनील कुमार लौटे, एक एक्टिविस्ट सोशल वर्कर थे, उनसे मैं मिला। उस टाइम मैं स्पर्धा परीक्षा जैसे यूपीएससी रहती है, यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा था। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम किसान के घर से आते हो, किसानी पढ़ रहे हो, तो तुम्हें ऑफिसर क्यों बनना है, किसान के लिए क्यों कुछ काम नहीं कर पाओगे। तो एक पूरा एक टर्निंग पॉइंट था। फिर मुझे फिल्म मेकिंग में बहुत दिलचस्पी थी, तो मैंने एक अवकाल नाम का एक शॉर्ट फिल्म बनाया था, मतलब अनसीजनल जो चैलेंजेस आते हैं फार्मर्स को। तो एक डायरेक्शन था, उसमें मैंने काम किया। फिर मुझे उसमें बहुत अच्छा लगा कि इसमें काम करना चाहिए। तो मैंने पूरा घरदार छोड़ के, मेरे गांव से लगभग 400 किलोमीटर का अंतर था, उस इलाके में मैं जहां फार्मर्स किसान ऐसी दुर्घटना होती है उनके साथ काम करने लगा, गांव-गांव में जाके करने लगा। तो एक टर्निंग पॉइंट था। और मुझे पहले से ही लगता है कि किसान के लिए कोई ज़्यादा सोचता नहीं है, काम नहीं हो रहा है। तो जो अड़चन में है, जो चैलेंजेस फेस करे, उस किसान को हाथ देना हमारा पहला कर्तव्य है। ये मुझे लगता है कि मैं ये भी आज के डेट में कहता हूँ कि मैं सारे किसानों के बारे में नहीं कहता, मैं जो चैलेंजेस में है, जिसको हाथ की ज़रूरत है, उसको हाथ देना मुझे इम्पोर्टेंट लगता है। बिल्कुल। विनायक जी, जैसे मैंने बताया और आपकी किताब में भी ये कहीं ना कहीं है कि किसानों की आत्महत्या का जो मुद्दा है ये सिर्फ ऐसा नहीं कि हमारे देश में ही है, ये कम से कम दुनिया के 60 से ज़्यादा देशों में ये मुद्दा है। क्योंकि जो किसानी जो है एक व्यवसाय के तौर पे देखें तो भी लगता है कि बहुत से चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, बहुत मुश्किल होती है पैसा कमाने में इस व्यवसाय से। तो ग्लोबली ये कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, क्या लगता है आपको? जी, जैसे अभी क्लाइमेट चेंज का मुद्दा है, ये जागतिक स्तर पे ही पूरा काम कर रहा है। जैसे अभी हमारे यहाँ देखो बाढ़ भी आ रही है, जहाँ पानी भी नहीं कम पड़, मतलब जहाँ एक जगह पे बहुत ज़्यादा पानी है, एक जगह बहुत कम पानी है, ऐसी सारी
चैलेंजेस है और हमारे यहाँ पूरा क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट ग्लोबली दिख रहा है। तो इस हिसाब से बाकी देशों में पानी का ये है कि टेम्परेचर कम होना, बर्फ़ जो होती है जहाँ पहले गिरती नहीं थी वहाँ गिरना, वो सारी चेंजेस है और उसका किसान के पूरे जीवी खेती में बहुत इम्पैक्ट होता है, चैलेंजेस आ रहे हैं और उसका नुकसान बहुत होता है। जैसे यूनाइटेड किंगडम का इंग्लैंड का एग्जांपल लिए तो 2019 में लगभग 10 लाख हमारे गाय जो है वो मर गए बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर का गिरना हो गया और वहाँ के 134 फार्मर्स ने, किसान ने आत्महत्या की। तो ये ऐसे जगत के 65 देश है जिसमें ये सारी चैलेंजेस आ रही है। तो ये बहुत आगे जाके 20 साल में बढ़ेगा क्योंकि क्लाइमेट चेंज का आज के डेट में हम जो चैलेंज देख रहे हैं वो बहुत इम्पैक्टफुल है। बट ग्लोबली इसके बारे में डिस्कशन हो रहा है, काम होने की ज़रूरत उनको महसूस हो रही है, वो एक अच्छा बात है। बिल्कुल, तो डेवलप्ड कंट्री में भी ये इशू है, डेवलपिंग कंट्रीज में भी ये इशू है। तो ओवरऑल में देखने जाए तो आखिर क्या हम कर सकते हैं कि जिससे ये जो समस्या है ये खत्म हो? क्या इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन जो जिसको बोलते हैं वो क्या हो सकता है इसके लिए? जी, तो सुसाइड होना, आत्महत्या करना एक बात है, बट किसान के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए काम होना ये बहुत ज़रूरत है। भारत के तौर पे हम कहें तो ग्रामीण तौर पे उनका मानसिक स्थैर्य, मानसिक आरोग्य अच्छा रखना, इसके लिए हमारे यहाँ प्रोग्राम लाना, गवर्नमेंट के तौर पे उसके लिए कार्यक्रम करना और ऐसे फार्मर्स को, ऐसे गांव वालों को, ऐसे किसानों को हाथ देना। जैसे हमने ये पिरामिड मॉडल कहा, तो हमारा यही एक उद्देश्य है कि भारत भर में ये पिरामिड मॉडल के तौर पे किसान के सामाजिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य के लिए काम होना चाहिए। और जैसे अभी मैं यूनाइटेड किंगडम में काम कर रहा हूँ तो उस तरीके से हम वहाँ एक कानून लाने की बात कर रहे हैं कि किसान की मानसिक आरोग्य के लिए एक एक्ट लाए और उससे उस देश के चीज़ में काम हो जाए कि इसमें वो सारा कम करके ग्लोबली यूनाइटेड नेशन को इस पूरे ग्लोबल के लिए एक कार्यक्रम आगे लाके पूरे जागतिक स्तर पे फार्मर्स के बारे में कुछ मानसिक स्तर पे काम होना चाहिए। जी बिल्कुल विनायक जी, तो आप हमसे जुड़े और ऐसे विषय के बारे में बात की जिस विषय के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं होती है, ज़्यादा बात नहीं होती है और ऐसा मुद्दा है कि जो अभी भी देश के आज़ादी के इतने सालों के बाद भी अगर ये जो मुद्दा है जिसका अभी तक कोई हम लोग सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाए हैं, लेकिन जैसे आप जैसे युवा है अगर बिल्कुल इस मुद्दे पे काम करते हैं तो लगता है कि अब अच्छे दिन आएंगे फार्मर्स के भी, किसानों के भी। जी जी। तो आप हमसे जुड़े और ये बातें की, इसलिए बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो અત્યંત મહત્વના મુદ્દા પર આજે ચર્ચા અને ખાસ કરીને જ્યારે યુવા વર્ગ જે છે એ કોઈ સળગતા મુદ્દે જ્યારે પ્રવૃત્તિઓ કરે છે, સમાજમાં સુધારો લાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે ત્યારે ચોક્કસપણે એ આવકાર્ય છે અને પ્રશંસનીય પણ છે। વિનાયકજીનો જે આ પ્રયાસ છે આપણા દેશમાં પણ તેમણે મહારાષ્ટ્રમાં ખાસ કરીને મહારાષ્ટ્રના ખેડૂતોની સ્થિતિ બદલવાનો જે તેમણે પ્રયાસ કર્યા છે તે ચોક્કસપણે પ્રશંસનીય છે, આવકાર્ય છે અને આપણે આશા રાખીએ કે આપણા દેશની અને દુનિયાના તમામ ખેડૂતોની સ્થિતિ આ રીતે સુધરે। ખેડૂતો અને ખેડૂતોનું માનસિક સ્વાસ્થ્ય અત્યંત જરૂરી મુદ્દો અને વધુને વધુ કામ આ દિશામાં થાય, વધુને વધુ પ્રવૃત્તિઓ સુધારાની આ દિશામાં થાય તેવું આપણે પણ ઈચ્છીએ છીએ। તો આ હતો આજનો મુદ્દો। આવતીકાલે આવા જ કોઈ સામાજિક મુદ્દા સાથે ફરી મળીશું, ત્યાં સુધી રજા આપશો। નમસ્કાર।